السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ود شان۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر لازمی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ میری ہر قسم کی دلچسپ، خوفناک اور رومانٹک کہانیاں سن سکیں۔ تو چلیں آج کی اپنی پہلی کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری کہانی جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل چکا ہوگا، ایک خوفناک کہانی ہے جس کا عنوان ہے خونی دلہن۔ کسی گاؤں میں ایک کنواں کھودا گیا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اسی کنویں سے پانی بھرتے تھے۔ یہ گاؤں تقریباً 2000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ ان سب لوگوں کا پانی اسی کنویں سے استعمال ہوتا تھا۔ یہ کنواں ان لوگوں کی مجبوری تھی کیونکہ اگر وہ اس کنویں سے پانی نہیں بھرتے تو انہیں تقریباً 5 کلومیٹر دور دریا پر پانی بھرنے جانا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کا گزر بسر ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک دن ایک عورت اس کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی برتن اوپر کو اٹھایا، دیکھتی کیا ہے کہ اس کے برتن میں ایک کانچ کی بوتل پڑی ہے اور اس بوتل میں سرخ رنگ کا کپڑا پڑا تھا جس پر چمکدار موتی لگے ہوئے تھے۔ اس عورت کی نظر جیسے ہی موتیوں پر پڑی، اس نے فوراً بوتل کو کھول کر کپڑا نکال لیا۔ اس عورت کے کپڑا نکالنے کی دیر تھی کہ اچانک اس کپڑے میں آگ بھڑک اٹھی اور ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی۔ اس کنویں کے پاس جتنے بھی لوگ تھے سب ڈر کر گاؤں کی طرف دوڑ پڑے۔ اس دن کے بعد جو بھی شخص پانی بھرنے جاتا اس کو وہی چیخ سنائی دیتی اور چیخ اتنی زوردار ہوتی کہ شخص کے کان پھٹ جاتے اور وہ گاؤں کی طرف دوڑ لگا دیتے۔ اب مجبوراً لوگ 5 کلومیٹر دور دریا سے پانی بھر کے لانے لگے، لیکن ان کی پریشانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک رات 2 نوجوان موٹر سائیکل پر اس گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ اس گاؤں کی سڑک کنویں سے 20 قدم کے فاصلے پر تھی۔ کیونکہ کنواں گاؤں سے باہر تھا تو جو شخص اس گاؤں کا رخ کرتا وہ اس کنویں کے پاس سے ہو کر گاؤں جاتا تھا۔ اب وہ 2 نوجوان جب اس کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اس کنویں پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہے کہ کنویں کے کنارے سے لگ کر ایک لڑکی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہے جس پر چمکدار موتی لگے ہیں، کھڑی رو رہی ہے۔ ان لوگوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو آگے والے نے موٹر سائیکل روک دی۔ اب وہ نوجوان منور اور ساجد کھڑے حیرانگی کے عالم میں کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے اور من ہی من یہ سوچ رہے تھے کہ آدھی رات کو یہ لڑکی اس کنویں کے پاس کیا کر رہی ہے اور یہ رو کیوں رہی ہے۔ لباس سے تو یہ دلہن معلوم ہوتی ہے، شاید اس کے گھر والے اس کی زبردستی شادی کرانا چاہتے ہوں گے اور یہ بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ ابھی یہ سوچ میں گم ہی تھے کہ ساجد نے منور کو کہا، یار آدھی رات ہونے کو ہے اور یہ لڑکی بھی اکیلی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آنا چاہیے۔ منور نے ساجد کی بات پر آمین کہا اور دونوں اس لڑکی کی طرف چل دیے۔ ساجد اور منور اس گاؤں کے نہیں تھے۔ ساجد اپنے دوست کے ہمراہ اپنے ماموں کے گھر ان کی عیادت کو آ رہا تھا۔ اس کے ماموں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اب یہ دونوں اس لڑکی سے 10 قدم دور کھڑے ہو کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ کون ہو تم اور آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ لیکن اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل رو ہی رہی تھی، اور اس لڑکی کا رونا بھی ایسا تھا کہ پتھر دل بھی موم بن کر پگھل جائے۔ اب جب اس لڑکی نے جواب نہ دیا تو یہ لوگ مزید چند قدم آگے بڑھے۔ اس لڑکی نے سر پر بڑا سا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھانا شروع کیا۔ اب ساجد جیسے جیسے گھونگھٹ اٹھا رہا تھا اس لڑکی کے پاؤں آہستہ آہستہ پیچھے کو مڑنے لگے، یہاں تک کہ ساجد نے پورا گھونگھٹ اٹھایا اور اس لڑکی کے پاؤں پیچھے کی طرف مکمل مڑ گئے۔ اب منظر اچانک تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس لڑکی کا قد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا، چہرہ سیاہ رنگ کا، آنکھیں سرخ ہو گئی جن سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔
दांत शेर की तरह बड़े और नोकीले और बाल सांप की तरह बल खाने लगे। देखते ही देखते वो लड़की एक चुड़ैल बन गई। मुनव्वर और साजिद ने जब ये मंजर देखा तो दोनों ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। भागते भागते वो गांव के करीब ही पहुंचे थे कि इस चुड़ैल ने दूर से ही हाथ लंबे किए और इन दोनों को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों को कुएं में ले जाकर मार दिया और खा गई। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो चुड़ैल सिर्फ डराती थी सबको, लेकिन जब से इस चुड़ैल ने साजिद और मुनव्वर को मारा था, इसके बाद हर दूसरे दिन कोई ना कोई मारा जाता। मुनव्वर और साजिद के घर जब इनकी मौत का पैगाम पहुंचा तो इन दोनों के घर कोहराम सा मच गया। उधर गांव में जब साजिद के मामू को साजिद की मौत का बताया गया तो मामू भी ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और वो इस दुनिया से चल दिए। अब इन गांव वालों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नौजवान अचानक गायब हो जाता और फिर इस कुएं के पास इसकी हड्डियां मिलती। एक दिन किसी ने इन गांव वालों को बताया कि साथ के गांव में एक उलामा रहते हैं और वो बहुत नेक और परहेजगार इंसान है। आप इनके पास जाकर अपना मसला बयान करें और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अब इस गांव के तमाम जागीरदार मिलकर इन उलामा साहब के आस्थाने पर पहुंचे और अपना तमाम तर अहवाल इनको बयान कर दिया। उलामा साहब ने इनकी बात गौर से सुनी और अगले दिन गांव आने का वादा किया। अब अगले दिन उलामा साहब अपने वादे के मुताबिक इस कुएं के पास पहुंच गए। उलामा साहब ने घूमकर हर तरफ से कुएं का जायजा लिया। जब उन्होंने झुककर कुएं के अंदर देखा तो कुएं का पानी खून की तरह सुर्ख नजर आ रहा था। उलामा साहब ये मंजर देखकर गांव की तरफ वापस आ गए। लोगों ने पूछा कि उलामा साहब क्या बना, वो चुड़ैल चली गई क्या? उलामा साहब ने जवाब दिया, नहीं, वो चुड़ैल मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब इससे निपटने के लिए मुझे 3 दिन का मुख्तसर चला काटना होगा, जिसमें मैं अपने रब के हुजूर इस चुड़ैल से लड़ने के लिए ताकत मांगूंगा। और 3 दिन बाद चांद की 14 तारीख होगी। इस दिन वो चुड़ैल अपनी पूरी ताकत में होगी। मैं इसी दिन इसको मारूंगा ताकि इसकी सारी ताकत ख़त्म हो सके। इतना कहकर उलामा साहब अपने आस्थाने की तरफ चल दिए। जैसे तैसे करके 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन उलामा साहब ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और रात को 12 बजे इस कुएं के पास चले गए। अब गांव वाले डर के मारे इस कुएं के पास नहीं गए, काफ़ी दूर खड़े हो गए। उलामा साहब अकेले कुएं की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे उलामा साहब कुएं की तरफ बढ़ते, इनके साथ साथ घुंघरू की आवाज़ भी चल रही थी। यहाँ तक कि उलामा साहब कुएं के पास पहुँच गए। उलामा साहब ने कुएं के अंदर झांका तो इन्हें अंदर कुछ नज़र न आया। अब वो देख ही रहे थे कि इनके सर से एक औरत का बाल नीचे की तरफ लटकने लगा। फिर 2, फिर 3 करते करते पूरा बालों का गुच्छा उलामा साहब के सर पर लटकने लगा। अब गांव वाले दूर से मंजर क्या देखते हैं कि वो चुड़ैल उलामा साहब के कंधों पर बैठी है और इसने अपने बाल उलामा साहब के सर के सामने लटकाए हुए हैं। अब जब उलामा साहब ने देखा कि बाल मुकम्मल हो चुके हैं, कोई बाल बाकी नहीं रहा, तो फौरन उलामा साहब ने इस चुड़ैल के बालों का गुच्छा हाथ में मरोड़ लिया। उलामा साहब ने जैसे ही गुच्छा मरोड़ा, इस चुड़ैल की चीखें निकल गई और चीखें इतनी बुलंद थी कि पास के गांव के लोग भी डर गए। अब उलामा साहब इस चुड़ैल से मुखातिब हुए कि कौन हो तुमने इन लोगों को क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब इस चुड़ैल ने बोलना शुरू किया कि मैं एक गरीब किसान बाप की बेटी थी। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। मैंने अच्छे नंबरों से अपने मैट्रिक के इम्तिहान पास कर लिए थे। इम्तिहान पास करने के बाद मैं घर पर ही रहने लगी। एक दिन मेरी मामी और मामू अपने बेटे साजिद का रिश्ता लेकर हमारे घर आए।
साजिद एक नंबर का आवारा, गुंडा और हवस परस्त इंसान था। मेरे वालिद ने अपनी बहन और बहनोई को इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे वालिद साजिद को पसंद तो करते थे, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर मेरा रिश्ता मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम आसिम था, इससे तय हो गया। मैं आसिम को पसंद करती थी और ये बात साजिद जानता था। फिर हमारी शादी की तारीख तय हो गई। अब आसिम वैसे तो पड़ोस में रहता था, लेकिन इसके वालिदैन इससे पास के गांव इसके दादाजी के घर कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गए थे। देखते देखते बारात का दिन भी आन पहुंचा। बारात चूँकि पास के गांव से आनी थी, कुछ टाइम लग गया इनको आने में। अब सब नीचे बारात का इंतज़ार कर रहे थे। मैं ऊपर अकेली दुल्हन के रूप में आसिम का इंतज़ार कर रही थी कि इतने में मुझे पास की खिड़की से किसी के कूदने की आवाज़ आती है। जैसे मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, खिड़की पर साजिद और इसका दोस्त मुनव्वर खड़े थे। फिर वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। मैं समझ गई कि ये लोग किसी नेक इरादे से नहीं आए। मैंने फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन मुनव्वर ने मुझे ज़ोर से धक्का मारा। मैं कमरे कोने में जा गिरी जहाँ लोहे का संदूक पड़ा था। इस संदूक का कोना मेरे सर पर जा लगा और काफ़ी खून बहने लगा। इन दोनों ने जब ये मंजर देखा तो डर गए और पास पड़ी लालटेन से पूरे कमरे को आग लगा दी और खुद उसी खिड़की से भाग गए। नीचे जब लोगों ने ऊपर आग देखी तो सब मेरी तरफ भागे, लेकिन देर हो चुकी थी। पूरा कमरा जल चुका था और जलकर राख हो चुका था। मेरे वालिद ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और कोमा में चले गए। जब मेरी रूह जिस्म से निकली तो वो बदरूह में तब्दील हो गई और मेरे अंदर इंतकाम की आग जलने लगी। लेकिन इतनी ताकतवर मैं नहीं थी कि साजिद और मुनव्वर को मार सकती, लेकिन मैंने इन्हें खूब सताया और डराया और ज़हनी मरीज़ बना दिया। एक दिन मेरी मामी ने एक जादूगर को बुलाया। इसने मुझे अपने मंत्रों से कैद कर लिया और मुझे एक कपड़े की शक्ल में एक कांच की बोतल में डाल दिया और वो कांच की बोतल इसी कुएं में फेंक दी। इस बात का इल्म किसी को भी नहीं था, लेकिन आलम ने यह भी बताया था कि जिस दिन इस कपड़े को बोतल से निकाला गया, इस दिन मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगी। और ऐसे ही हुआ। गांव की एक औरत ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैंने पहले जाकर अपने वालिद को देखा, जो तकरीबन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया, अब इनको कोई भी बुरी खबर नहीं सुनाई जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस रात मैंने साजिद और मुनव्वर को अपनी तरफ आते देखा तो मैंने आज ही इनसे बदला लेने का सोच लिया और इन दोनों को मार दिया और फिर इनके गोश्त से खूब लुत्फानंदोज हुई। उलामा ने इसके सर को एक बार फिर जोर से खींचा और बोले, तो बाकी लोगों को क्यों मारा तुमने? वो चुड़ैल बोली, मुझे इंसानी गोश्त की लत लग चुकी थी। जब तक मैं किसी इंसान का गोश्त न खाऊं, मेरी भूख नहीं मिटती। उलामा एकदम गुस्से में आ गए और कहा, अब तुम्हारी भूख मैं मिटाऊंगा। और उलामा ने कुरानी आयत पढ़नी शुरू कर दी। वो चुड़ैल चीखती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो, अब नहीं करूँगी। लेकिन उलामा साहब रुके नहीं। फिर अचानक आसमान से एक रोशनी नमूदार हुई जो सीधा इस चुड़ैल पर आ लगी और इसे अपने साथ आसमान में ले गई। गांव के लोग जो ये मंजर देख रहे थे, कई तो बेहोश हो गए और कुछ की आंखें नम थी। फिर इसके बाद उलामा साहब ने कहा, अब कोई ख़तरा नहीं है, आप इस कुएं से पानी भर सकते हैं। इस दिन के बाद कभी किसी के साथ इस कुएं पर वाक़या नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।